Hello, my dear students. In this session, we'll be taking up some questions of mixtures and allegations that have appeared in previous years in ZAT examination. So let us start the session with the first question. Question number 1 is from ZAT 2023. Question is saying a small jar contained water, lime and sugar in the ratio of 90:7:3. A glass contained only water and sugar in it. Contents of both small jar as well as glass were mixed in a bigger jar, and the ratio of contents in the bigger jar was 85:5:10. Water, lime and sugar respectively. So find the percentage of water in the bigger jar. This is like a trick question. Pause the video and try to solve it. Why I said that this is like a trick question? Because question पूछ रहा है find the percentage of water in the bigger jar, and we've already been given ratio of concentrations in the bigger jar, which is 85:5:10, and water is 85 out of these values, 85:5:10. Total contents आ रहा है हमारा 100 units. Out of these, water is 85 units. So percentage will be 85%. That's all. Question is done. Option is the answer. A pure sitter, but maybe some might get confused or something because इतना simple question है, कहीं ना कहीं पे फंस सकते हो. Possibility है. You comment. I don't know कि फंसने का scope है कि नहीं है. लग तो रहा है. Next question. A mixture comprises water and liquids A and B. The volume of water is 1/3 of the total mixture and the volume of liquids. So water plus A plus B. There are 3 liquids in the mixture. And 1/3 is water. A and B are in the ratio 5:3. Fine. So water is to A is to B. और A और B का रेशियो है 5:3 का. 5 plus 3 is 8. And we know 1/3 is water. तो अगर 1/3 water है तो 2/3 ये बचा हुआ मिक्सचर होगा. 5 plus 3 is 8. So if 8 is equal to 2/3, तो 1/3 हो जाएगा 4. So water must be 4 units. 4:5:3. टोटल हमारा रेशियो आ गया वाटर A and B का. To remove the water, the mixture is passed through a porous medium which completely absorbs the water and partially also absorbs liquid A. It completely absorbs the water and partially absorbs liquid A. Liquid A को भी partially absorb करता है. Although this porous medium absorbs 200 ml of the initial mixture. If the ratio of volume of liquids A and B in the residual concentrated mixture, जो बचा हुआ है उसमें जो रेशियो है वॉल्यूम A और B का, लिक्विड A और B का, that is 7:9. So that we know 7:9 का रेशियो है. तो we have to find the volume of water absorbed. What we know कि वाटर को तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, बट लिक्विड A को पार्शली एब्जॉर्ब करता है. और फाइनली हमारे पास जो रेशियो आ रहा है A और B का, that is 7:9 का. सिंस B पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस चीज पे हमारा कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा है, that is the constant that we are looking for. So in liquid B there is no difference before the porous medium and after the porous medium. And for liquid B initially it is 3 units and finally it is 9 units. तो रेशियो को इक्वल करते हैं because both are same ultimately. So multiply the first values by 3. So ratio will become 12:15:9. Now it is correct. So initially and finally B is same, दोनों में 9 है. ठीक है. A हमारा 15 से 7 हो गया है और ऑब्वियसली वाटर तो 0 हो गया है, वाटर तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया है. तो 15 से अगर A हमारा 7 हो गया है, which implies कि 8 units has been absorbed, 8 units of liquid A has been absorbed by the porous medium and 12 units of water also has been absorbed by the porous medium. So effectively out of total 12 plus 8, 20 units have been absorbed. 20 units absorbed and that is equal to what? 200 ml, because question कह रहा है 200 ml of the initial mixture has been absorbed. 20 units is equal to 200 ml, so 1 unit will be equal to 10 ml. Finally the question is asking find the volume of water absorbed and 12 units of water has been absorbed, so 12 units will be equal to 120 ml. Our answer will be 120 ml of the water has been absorbed. Option E will be our answer. Clear है? Okay, next question. Product M is produced by mixing chemicals X and chemical Y in the ratio of 5:4. Chemical X is prepared by mixing two raw materials A and B in the ratio 1:3, and chemical Y is prepared by mixing raw materials B and C in the ratio 2:1. So chemical X has been prepared by mixing A and B in the ratio 1:3, and chemical Y has been prepared by mixing B and C in the ratio 2:1. And we also know कि X और Y को 5:4 के रेशियो में मिक्स करते हैं, तब हमें प्रोडक्ट M मिलता है. प्रोडक्ट M is the result of mixture of X and Y in the ratio 5:4. So before mixing X and Y in the ratio 5:4, we have to equate. पहले तो इक्वल करना पड़ेगा X और Y के वॉल्यूम को, उसके बाद तो 5:4 में कर पाएंगे इसको. एंड अगर इनिशियली हम देखें तो 1 plus 3 is 4, तो दिस इज 4 यूनिट्स.
एंड दिस इज 2 + 1 3 यूनिट्स. सबसे पहले इनको इक्वल करेंगे तो वील मल्टीप्लाई द फर्स्ट वन बाई 3 एंड सेकंड बाई 4, तो दोनों 12 यूनिट्स हो जाएंगे. दैट इज द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन. एंड देन सेकेंडली सिंस 5:4 में मिक्स करना है एक्स और वाई को, तो वील मल्टीप्लाई बाई 5 द फर्स्ट वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाई 4 द सेकेंड वैल्यू. अब रिजल्ट क्या आएगा? तो फर्स्ट में वी आर इफेक्टिवली मल्टीप्लाइंग बाई 15, तो 15 इंटू 1, ए अल्टीमेटली रिजल्टेंट में क्या होगा? 1 इंटू 15 15 यूनिट्स. बी होगा 15 इंटू 3 45 प्लस 16 into 2 32, and C will be 16 into 1, so 16 units. Effectively 15 is to 77 is to 16. ये A B C का हमारा रेशियो आ गया फाइनल प्रोडक्ट में, विच इज प्रोडक्ट M. M में A B और C का हमें रेशियो मिल गया. क्लियर है? देन द फाइनल मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 864 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट M विद वाटर. 864 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट M हैज बीन मिक्सड विद वाटर. टोटल ये आ कितना रहा है? दिस इज 15 प्लस 77, दैट इज 92 प्लस 16 108 यूनिट्स. 108 यूनिट्स आ रहा है इफेक्टिवली, बट 864 मिक्स किया गया, यानी कि दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 8 एंड देन इट विल बिकम 864 यूनिट्स. सो दिस मच प्रोडक्ट M हैज बीन मिक्सड विद वाटर एंड वी नो फाइनली अल्टीमेटली कंसंट्रेशन ऑफ रॉ मटेरियल B इन द फाइनल मिक्सचर इज 50%. सो B फाइनल मिक्सचर में है 50%, यानी कि अगर टोटल फाइनल मिक्सचर हमारा 864 है, 108 इंटू 8 है, तो उसमें से B हमारा कितना है? B 77 और 108 में B 77 है. 108 में B 77 है, तो अगर B हमारा 50% है, क्योंकि वाटर में तो B है नहीं डेफिनेटली, तो अगर 77 हमारा यूनिट्स है B इन 108 यूनिट्स और 50% है इफेक्टिव मिक्सचर में, यानी वाटर को ऐड करने के बाद में, तो टोटल मिक्सचर हमारा कितना होना चाहिए? 108 प्लस 77 का मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा? दैट विल बी 154, यानी कि इफेक्टिवली हमारा 154 यूनिट्स में 77 B होगा. और 154 बनाने के लिए 108 में कितना मिक्स करना पड़ेगा हमको? 46 यूनिट्स मिक्स करना पड़ेगा 108 यूनिट्स में, बट एक्चुअल यूनिट्स है हमारी 864. सो वाटर हमें मिक्स करना पड़ेगा 46 इंटू 8 विच इज 368 यूनिट्स. सो वाटर शुड बी 368 यूनिट्स. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है. So if mixture was 108 units, product M was 108 units, then B is 77 units, and we know total हमारा, since B is 50%, total will be 154, but actually M is 108 into 8 and that is equal to 864 units. और अगर 77 होता तो हमारा वाटर कितना होता? 108 154, डिफरेंस है 46 यूनिट्स का, तो वाटर हमारा 46 यूनिट्स है, एक्चुअल में होगा 46 into 8, so that will be 368. Next question. Ramesh bought a total of 6 fruits, apples and oranges from the market. He found that he required 1 orange less to extract the same amount of liquid as extracted from the apples. So if n apples are used to make the juice, n minus 1 oranges are sufficient to make the same quantity of juice. That is what the question is meaning. Question meant. If Ramesh had used the same number of apples and oranges to make the blend, then which of the following correctly represents the percentage of apple juice in the blend? परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस कितना होगा ब्लेंड में, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. नाउ लेट अस अज्यूम अ फ्यू वैल्यूज, क्योंकि टोटल 6 फ्रूट्स ही हैं एंड वी नो कि अगर n हमने एप्पल्स लिए हैं, सो ऑरेंजेस टेकन वुड हैव बीन n-1. सो इफ n इज इक्वल टू 1, इन दैट केस ऑरेंजेस होंगे 0, बट इसका तो केस नहीं बनता, बिकॉज ऑब्वियसली 0 लेने का कोई सेंस नहीं बना. 0 से जूस कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? दैट इज नॉट पॉसिबल. सो इफ देयर आर 2 और एप्पल्स, देन 1 ऑरेंज इज टेकन टू मेक द जूस, टू मेक द इक्वल अमाउंट ऑफ जूस, बट इन दैट केस कहानी क्या बनेगी? क्योंकि क्वेश्चन हमारा लास्ट में ये भी कह रहा है रमेश हैड यूज्ड द सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस टू मेक द ब्लेंड, और टोटल हमारे फ्रूट्स हैं 6 फ्रूट्स, तो 2 + 1 से ही उतना बन जाता, पर 1 एक और एडिशनल लिया है बिकॉज इक्वल एप्पल ऑरेंजेस लिए हैं. दिस इज इक्वल टू 4, तो नॉट द केस दैट वी रिक्वायर. टोटल हमें 6 चाहिए, तो डेफिनेटली केस हमारा होगा 3 एप्पल्स एंड 2 ऑरेंजेस विल मेक इक्वल अमाउंट ऑफ जूस, और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट हैव बीन टेकन बाई रमेश विल बी 3 + 2 + 1, and that is equal to 6 fruits. So yes, this is matching the conditions. So answer हमारा क्या है? 3 apples he must have taken. He must also have taken 3 oranges, but 2 oranges are sufficient to make the equal amount of juice. Now the question is asking which of the following correctly represents the percentage of apple juice in the blend. Percentage of apple juice in the blend. 3 apples are making equal amount of juice as 2 oranges. So let us assume 3 into 2 कि 6 ml juice हमारा निकलता है 3 apples से.
कोई वैल्यू ले सकते हो, 3 और 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 60 ml ले लो, 90 ml ले लो, 6 का मल्टीपल होना चाहिए बेसिकली। तो 3 एप्पल से अगर हमारा 6 ml जूस निकल रहा है तो वी नो कि 2 ऑरेंजेस से भी 6 ml जूस ही निकलेगा। बट हमने यूज कितने किए हैं एक्चुअल में, सेम नंबर ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यूज किए हैं, यानी कि हमने यूज किए हैं 3 ऑरेंजेस। तो अगर 2 ऑरेंजेस से 6 ml जूस निकल रहा है तो एक से निकल रहा है 3 ml जूस, 3 ऑरेंजेस से विल बी 3 इंटू 3 9 ml जूस फ्रॉम ऑरेंजेस एंड 6 ml जूस फ्रॉम एप्पल्स। टोटल जूस हमारा हो गया 6 + 9 15 ml। और क्वेश्चन पूछा परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस, तो परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस विल बी इक्वल टू 6 ml डिवाइडेड बाई टोटल विच इज 15 ml। 6 by 15 is 2 by 5 which is 40%. So none of the options are matching. Option E will be the answer and actual answer is 40% in this question. Is it clear? ठीक है, 40% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Gopal sells fruit juice mixture using orange juice and pineapple juice. Gopal prepared this mixture by drawing out a jug of orange juice from a 10-liter container filled with orange juice. तो एक 10 लीटर का कंटेनर इज देयर filled with orange juice, and from this container Gopal has taken out 1 jug mixture, and after taking out 1 jug orange juice he has replaced it with pineapple juice. तो उतना ही पाइनएप्पल जूस डाल दिया रिप्लेसमेंट, यानी कि इक्वल वैल्यू ऑफ पाइनएप्पल जूस हैज बीन poured in the same container. If Gopal draws out another jug, अब जब दूसरा जग ड्रॉ करेगा तो ऑलरेडी पाइनएप्पल जूस मिक्सड है, बट इस मिक्सचर में से ही इज ऑल्सो टेकिंग आउट 1 जग ऑफ द मिक्सचर and then mixing another jug of pineapple juice because replacement कर रहा है। Question is asking volume of the jug कितना होगा if it is given that now after 2 such replacements container has equal volumes of orange juice and pineapple juice, equal volumes of orange juice and pineapple juice. So let us say jug का volume है हमारा total volume 10 है and volume of jug let us say is equal to V, this is equal to V. तो 10 में से V निकाला है, प्रपोर्शन कितना बचेगा, प्रपोर्शन ऑफ ऑरेंज जूस आफ्टर फर्स्ट रिप्लेसमेंट, तो प्रपोर्शन बचेगा 10 - V by 10। 10 में से V निकाल लिया तो 10 - V रिमेनिंग बचा, प्रपोर्शन बचा इनिशियल के रिस्पेक्ट में 10 - V by 10। यही सेम काम एक बार फिर से करेगा तो नेक्स्ट टाइम भी 10 - V by 10 बचेगा, जो वैल्यू बचा होगा उसका। सो इफेक्टिवली 10 - V by 10 का होल स्क्वायर, दैट इज द प्रपोर्शन ऑफ ऑरेंज जूस इन द टोटल क्वांटिटी, एंड वी नो कि ऑरेंज जूस और पाइनएप्पल जूस आर नाउ इक्वल, यानी कि टोटल क्वांटिटी में एप्पल जूस अब हमारा ऑरेंज जूस बचा है 1/2। सो दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 1/2। 10 - V by 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। सो दैट इंप्लाइज 10 - V का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिवाइड बाई 100 था, इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 10 - V का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 50। सो 10 - V विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 50। बट एज वी नो v हमारा क्या होगा, v विल बिकम 10 माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50। 10 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50 तो पॉसिबल नहीं है v, बिकॉज v विल डेफिनेटली बी लेस देन 10। तो हमारा वॉल्यूम v जो है दैट विल बी इक्वल टू 10 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 50, और 50 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5√2, तो 10 माइनस 5√2 एंड √2 इज 1.414। सो अप्रॉक्सीमेटली दिस वैल्यू विल बी 5 × 1.414। 7 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा, बहुत इतू सा बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 10 - 7.07। सो दिस विल कम आउट टू बी 2.93 लीटर के आसपास, 2.93 लीटर्स। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। रेंज होगा ग्रेटर देन 2.5 एंड लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू 3। ओके, क्लियर है। अगर लेस देन 3 भी एक ऑप्शन होता तो लेस देन 3 वाला आंसर होता, लेस देन इक्वल टू, बिकॉज 3 से छोटा वैल्यू क्लियरली 2.93 लीटर के आसपास का वैल्यू आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज राम प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ अल्कोहल इन वाटर अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड्स। ओके, so this morning Ram has prepared 27 liters of a 12% alcohol solution and kept it ready in a 27-liter delivery container to be shipped to the customer. And just before delivery, he finds out that the customer had asked for 27 liters of 21% alcohol solution. So he has prepared, Ram ने prepare किया 27 liters of 12% solution, but customer का requirement है 27 liters of 21% alcohol solution. To prepare what customer wants, Ram replaces a portion of 12% solution by 39%. So how many liters of 12% solution are replaced? Replacement का मतलब ये हुआ कि एक पोर्शन तो निकाल लिया और उसके बाद में उतना ही 39% has been mixed.
So effectively we have to mix 12% solution and 39% solution to make a 21% solution. That is what the question is saying. 12% and 39% are being mixed to make a 21% solution. तो एलिगेशन लगा देते हैं straight away. 39 minus 21 is 18, 21 minus 12 is 9, तो रेशियो विल बी 18:9, यानी 2:1 का रेशियो आएगा अल्टीमेटली. क्लियर? ठीक है. और टोटल क्योंकि रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हो रहा. टोटल वॉल्यूम इन दिस केस इज 27. टोटल वॉल्यूम है 3 यूनिट्स और 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 27 लीटर्स. सो यानी कि 2 यूनिट्स हमारा 18 liters will be 12% solution and 1 unit which is 9 liters will be 39% solution. तो रिप्लेसमेंट हमने कितना किया है? 9 liters का रिप्लेसमेंट किया है. आंसर विल बी ऑप्शन बी. 9 liters एक्सट्रैक्ट किया हमने 12% सॉल्यूशन और फिर 9 liters 39% सॉल्यूशन उसमें मिक्स किया. इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है. इसी बात को सिंपली समझे तो ऐसे भी समझ सकते हैं. 12% सॉल्यूशन वाज देयर, वी मिक्स 39% सॉल्यूशन. इफेक्टिवली एवरेज हमारा कितना बना है? एवरेज इज 21% सॉल्यूशन. 21% solution which is 9% more than 12%. Okay, and what we mixed 39% solution which is 27% higher. 27% higher, isn't it so? 27% higher. और टोटल हमारा जो वॉल्यूम है that is 27. Let us say we mixed x units of 39% because that is the replacement, that is what replacement is. तो अगर x यूनिट्स हमने रिप्लेस किया है, 12% में ऐड किया है, 12% को हम 0 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बेस मान लेते हैं. कितना एवरेज हमारा इंक्रीज हुआ है? एवरेज हैज इंक्रीज बाय 9%. एवरेज में इंक्रीज आया है 9% का. और अगर हमने x यूनिट्स ऐड किया है तो x यूनिट्स के लिए कितना फर्क आया है? 27% हाइयर है x यूनिट्स. तो 27 इंटू एक्स का चेंज आया है सम में, और टोटल सम हमारा कितना है? दैट इज ऑल्सो 27. ऊपर वाला 27 है हमारा, ये वाला 27 एडिशनल 27 और नीचे वाला 27 है टोटल वॉल्यूम है बिकॉज रिप्लेसमेंट इज देयर. ओके, सो यहां से x विल बी इक्वल टू 9. क्वेश्चन इज डन. ऑप्शन बी इज द आंसर. क्लियर? ओके, सो दिस कैन ऑल्सो बी द मेथड. नेक्स्ट वन, a medical practitioner has created different potencies of a commonly used medicine by dissolving tablets in water and using the resultant solution. So potency 1 का solution है when 1 tablet is dissolved in 50 ml solution. The entire 50 ml is equivalent to 1 dose. Potency 2 solution is when 2 tablets are dissolved in 50 ml solution. The entire 50 ml of this solution is equivalent to 2 doses and so on. So अगर 3 tablets हम dissolve करेंगे 50 ml में, that will be potency 3 and so on. This way he can give fractions of tablets based on the intensity of infection and the age of the patient. So for a particular patient, he administers 10 ml of potency 1, 15 ml of potency 2 and 30 ml of potency 4. Question is asking the doses administered to the patient is equivalent to what? जितना administer कर रहे हैं doses patient को, how much tablets this will be equivalent to? That is the question. So 10 ml of potency 1, 15 ml of potency 2 and 30 ml of potency 4. ओके, पोटेंसी 1 वाला 50 ml में 1 टैबलेट हम रिजॉल्व करते हैं. तो 10 ml में इफेक्टिवली कितनी टैबलेट्स होंगी? 10/50 इंटू 1 टैबलेट, तो 0.2 टैबलेट्स विल बी देयर. सिमिलरली 15 ml ऑफ पोटेंसी 2 में 2 टैबलेट्स रिजॉल्व होता है 50 ml में, 15/50 इंटू 2, सो 0.6 टैबलेट्स विल बी देयर. एंड 30 ml ऑफ पोटेंसी 4 में देयर विल बी टोटल 4 टैबलेट्स इन 50 ml, और 30 ml हम ले रहे हैं 30/50 इंटू 4, दिस विल बी इफेक्टिवली 0.6 इंटू 4, 2.4 टैबलेट्स. टोटल टैबलेट्स हो गया 0.2 प्लस 0.6 प्लस 2.4, 3.2 टैबलेट्स. So the doses administered is equal to 3.2 tablets. Option B will be the answer. Greater than 3 but less than equal to 3.25 tablets. Is it clear? Option B will be the answer. ठीक है, कोई दिक्कत? जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन कंसंट्रेशन वाइज पूछता, इस क्वेश्चन में वैसा नहीं था, बट अगर कंसंट्रेशन वाइज पूछता तो यहाँ पे हमारा जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ रहा है? कॉन्सेंट्रेशन पे क्वेश्चन होता है तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करें. 10 ml, 15 ml, 30 ml, तो टोटल 55 ml में हमारी 3.2 टैबलेट्स हैं. इन दैट केस 3.2 इंटू 50/55 दैट वुड हैव बीन द कंसंट्रेशन ऑफ टैबलेट. ओके, उसके हिसाब से कोई रैंकिंग होता पोटेंसी की बजाय कि 1.2, तो दैट वुड हैव बीन अ डिफरेंट क्वेश्चन.
बट वो भी समझ में आना चाहिए कि अगर कंसंट्रेशन के हिसाब से देखता तो फिर चीज़ें डिफरेंट होती, बिकॉज इफेक्टिवली हमारी 3.2 टैबलेट्स आर देयर इन 55 ml, नॉट 50 ml। तो 50 ml में निकालते तो फिर चीज़ें डिफरेंट होती, कंसंट्रेशन वाइज क्वेश्चन होता, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में वैसा नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछा डोजेज एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट इज इक्वल टू हाउ मेनी टैबलेट्स, आंसर विल बी 3.2। नेक्स्ट वन, a manufacturer has 200 liters of acid solution which has 15% acid content. How many liters of acid solution with 30% acid content may be added so that acid content in the resulting mixture will be more than 20% but less than 25%? More than 20% and less than 25%. तो दोनों केसेस के लिए एलिगेशन लगा देते हैं, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। 15% एसिड कंटेंट का 200 लीटर सॉल्यूशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है एंड वी आर मिक्सिंग 30% सॉल्यूशन विद इट टू मेक मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 25%। तो अगर 20% बनाते तो क्या बनता कहानी, 30 - 20 is 10, 20 - 15 is 5, 10:5 का मिक्सचर बनता है, 2:1 के रेशियो में मिलाना पड़ता। एंड वी बीन गिवन 200 लीटर्स ऑफ एसिड सॉल्यूशन ऑफ 15%, तो 15% वाला 200 लीटर है, यानी कि 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 200 लीटर, तो 1 यूनिट विल बी 100 लीटर। यानी कि अगर 20% से ज़्यादा का मिक्सचर चाहिए हमको, डेफिनेटली 100 लीटर से तो ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, दैट इज फर्स्ट थिंग। मोर देन 100 लीटर यानी कि ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा, बिकॉज दिस शुड बी मोर देन 100, बट 101 भी चल जाएगा, 120 तक पहुंचना जरूरी नहीं है। और मैक्सिमम चाहिए 25, तो 25 के लिए रेंज क्या निकलेगा, 50% एंड 30%, एवरेज इज 25%, एवरेज इज 25%, तो 30 - 25 इज 5, 25 - 15 इज 10, 5:10, यानी कि 1:2 का रेशियो है। एंड वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन 200 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 15%, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 200 लीटर, 2 यूनिट हो जाएगा 400 लीटर के बराबर। सो मैक्सिमम इज 400 लीटर बट लेस देन 400 इज द सॉल्यूशन, बिकॉज लेस देन 25% चाहिए यहाँ पे, दिस इज ग्रेटर देन 20% एंड लेस देन 25%, तो इक्वालिटी नहीं होगी, दिस शुड बी ग्रेटर देन 100 बट लेस देन 400, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओके, इक्वालिटी नहीं होगी, क्लियर है, तो लेस देन होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो आई बिलीव कि सेशन में जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं पसंद आएंगे, सॉल्यूशन समझ में आएंगे, किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर सेशन।